just introduce Nashid Bhai. Nashid Bhai is our international coordination head. He lives in Malaysia, and he is one of the very old member of AMP and part of our AMP India board as well. So Nashid Bhai is the one who coordinates all the international chapters, all 15 countries. So since this meeting is a fundraising event, and this is first time we are doing ever anywhere in the world, even we have not raised any fund physically in India as well, even in last 12 years. So all our fundraising has been happening all the time through calls, through messages. But this is first time we are meeting here. We have a small goal. We may be successful, we may not. But the purpose is to meet, discuss about AMP, and we'll see what we can do. So Nashid Bhai, if you can go ahead and start with Quran, and then inshallah we'll follow the agenda. जी शहनशाह भाई, am I audible? Yes, good. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله المولانا العظیم. शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है. जो आयत की मैंने भी तिलावत की है वो सूरह हदीद से है, आया नंबर 58, सूरह नंबर 58, आया नंबर 18. एंड द ट्रांसलेशन इन उर्दू इज लाइक दिस. मर्दों और औरतों में से जो लोग सदका देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसन दिया है, उनको यकीनन कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन अज्र है. And the same in English goes like this. Verily, those who have given sadaqat, that is zakat and alms, etc., men and women, and lend to Allah a goodly loan, it shall be increased multifold to their credit, and there shall be an honorable good reward, that is paradise. Sadaqallahu Azim. Shahin Shabai, over to you. बहुत बहुत शुक्रिया नाशिद भाई. I'll go to Amir Bhai, if you can open the forum with a short discussion, and then inshallah we'll go to Mufti Sahab, who has little time because his iftar will start at 40. So he got 20 minutes to finish the speech, and then it will be good. Amir Bhai. Ji, Jazakallah Shahinshah Bhai, and thank you everyone for joining this meeting. It's a new experience, even for us as well. It's a new experience, alhamdulillah. We hope that may Allah, we pray to Allah that may Allah make it successful, make this meeting successful, make all our efforts successful, and may Allah give us huge reward, huge ajr for all these things which we are doing, for not only for not our benefits, but for the benefit of the underprivileged, downtrodden, and the weaker section of the society. This is a new experiment. MashaAllah, thank you all the USA team members, USA board, and especially Shahinshah Bhai, Dr. Saif, and all those, Irfan Bhai, everybody. And thank you to Mufti Sahab as well, that you have agreed to join here. Mufti Sahab has been, is a very prominent personality from London. He has taken out time. Thank you for that. And inshallah, I'll speak my part after Mufti Sahab, inshallah. But I would like to welcome each one of you for this meeting. And inshallah, this will be a new beginning. Today, we are opening up a new chapter in the history of AMP, alhamdulillah. And I hope that this will be very successful, not only in USA, but we will try to replicate this at all other places, inshallah, within AMP. Thank you very much. Jazakallah. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई. I will go to Mufti Barakatullah Sahab. If you'd like to talk about importance of zakat, and that to organize zakat, why AMP is putting a lot of effort in organizing this zakat as a system. So that would be great. And in Islamic perspective, what it means. Yes, Assalamu alaikum. Ji, Mufti Sahab, maybe you can start with a little bit introduction of yours so that all our members will be aware. That will be great. Thank you.
Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mufti Barakatullah. I'm just a Sharia graduate, Sharia scholar, but again educated here in UK in economics and finance. And I'm the Sharia advisor to many Islamic institutions. But before Islamic financial institution, I've been advising the Muslim community and all the institutions, served as an imam and as in various roles here. And it is really pleasure to see, I mean, during last my 40 years of here, being here in UK, London, community grow across here in Europe and in North America. Everywhere Muslim community is growing from strength to strength. So my main profession is teaching, but of course advising Sharia matters. And in my previous life, I was a IT publisher also, published Quran and Hadith and Islamic databases on CD-ROM, and I used to come to ISNA conventions to display things. Yeah, I mean that's sufficient, I think, for the introduction. Yeah. Yeah, So mashallah. let us start with our topic. I mean, topic of zakat and charity. This is one of the unique features of the Muslim community. Here in UK, we have solid statistics that Muslim households are the highest donors of all the other communities, Jewish and Christian communities. So above the national average, Muslims contribute during Ramadan and after Ramadan, and to Muslim charities and non-Muslim charities both. So it's around this Ramadan is collected like 100 million, but per household is around £300, which is like $500 per household Muslims give. And this is because zakat and charitable donation is part of our faith and articles of faith. So after Shahada and after the prayer, third pillar of Islam is zakat, which is a financial obligation. And this obligation is towards the humanity, towards the other less well-off people. So Islam has made not just the belief in Allah subhanahu wa ta'ala, which is Iman, and then worship, salat, ritual prayer, which is to give our personal and psychological and benefits, our relationship with Allah. But then zakat is to connect human beings and a believer to the humanity, to the rest of the fellow human beings. And it has really so many qualities. Zakat, by its name, means purification, and it is a purification of heart, purification of our soul, and purification of physical purification of our earnings, that whatever assets and earnings we have, Allah through zakat, it purifies. So zakat is really a third important pillar which connects believer after connecting to Allah subhanahu wa ta'ala. It connects believers to humanity and to the rest of the human beings. And as I explained in my last 1 hour lecture about all the etiquettes and things like that, but all the rulings which are associated, like we learn how to pray, similarly we should learn how to calculate zakat and how to disperse and disseminate zakat according to the appropriate people. So if I can just start with that, intention is the most important thing. That what distinguishes zakat with non-zakat is at the time of giving, one has the pure intention of servitude to Allah subhanahu wa ta'ala through helping the humanity, through helping the fellow human beings. So the Iman is the first, and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that إن الله فرض عليكم أداء زكاتكم فأخرجوها طيبة بها أنفسكم.
So Allah, because Allah has made it obligatory to pay the zakat. So when you give zakat, give it very wholeheartedly with the content heart. Don't give it as a like a tax or burden, but give it as a as a uh, as a devotion to Allah subhanahu wa ta'ala by serving the humanity and giving it with pleasure. So it's not that poor we are doing any favor to poor or other recipients. It is a great opportunity for us to be able to serve the humanity by giving this, by connecting this way to the other human beings. So I mean, in other Sufi narrations, it is said that the giver should be thankful that the recipients are there to be subject of their act of worship and give them, purification, purity, and solace in this world and hereafter, inshallah. So, I mean, it has so many multidimensional benefits, really, that it has come twice with salat, aqimus salat wa atu zakat, 66 times in the Quran. So one of the greatest scholars says that every time we go for prayer in a public place, we should be having in mind giving zakat. So, but for some reason, it has accumulated now during Ramadan time, although it should be given all the time, every time, and every time there is a need and there is a appeal, we should give with the intention of zakat. And apart from this, I mean, Imam Ghazali rahmatullah alayh has put like so many inner dimensions of zakat and benefits of zakat that really, if we ever study the philosophy of zakat and its personal, psychological, social, other benefits, that it is really innumerable. Firstly, it is beneficial to the person who is giving, and it is like improving our generosity and negating our miserliness or any other possessive nature of human beings. And of course that we get the sawab, and not just in quantitative but in qualitative matter return. And of course, those who do not give zakat or do not pay heed to it, it becomes really in the Quran, in Surah Al-Tawbah, Allah very graphically describes that those who do not even pay 2.5% zakat, then they will be tormented with the same instrument of holding on the Day of Judgment. So, I mean, instead of going to the bad effect of not giving, I would more emphasize on the positive meanings and positive. So it should be given as soon as possible, and even early before, like in this lockdown and before Ramadan, when people were locked, many people really gave zakat early for the stranded lockdown people. And of course, it should be given more than what is due, 2.5%, and it should be calculated very, very seriously, vehemently, and like with seriousness, with the spreadsheet like self-assessment we do. So the best, but of course at the moment, because we are very thinly spread across states and in the world, apart from Muslim land where it is very organized way, like Gulf, Saudi Arabia and Sudan and many Muslim countries, it is a very well organized affair. In Malaysia also it's a very organized affair. But we across the globe, we are doing it individually. And in India also, it is really a very chaotic situation. But through India Zakat, inshallah and alhamdulillah,
through the initiatives of AMP, which has a national presence. It's a first attempt to do it in organized manner, in a manner which is collectively benefiting, bringing the donors, givers, and the recipient on one platform. So it's like creating a bazaar of zakat, creating a umbrella of zakat which facilitates. It's like a mosque of zakat. For prayer we have masjid and mosque and big things, but for zakat there was no institutionalized arrangement. So this institutionalized arrangement is really providing the zakat canopy for the whole of the fellow Muslims in India and outside India to collectively organize way, give zakat, and also meet the people who are recipients of zakat. So this is really I could say it is a revolutionary, and it's really one step further than giving individual zakat. Alhamdulillah, Muslims are good at giving individually and doing it individually. Like we are very good praying individually, but praying in public and in congregation has 25 times reward. So similarly, giving zakat in a collective manner, in a centralized manner, hopefully, inshallah, it will have a multiplier and good effect more than it is given if it is given individually. So really, I congratulate AMP India to provide this zakat canopy, or the masjid of zakat, I will term it inshallah, that they are providing an umbrella and a place where we can do zakat, give zakat, receive zakat collectively in a very organized manner. In this way, to accelerate the effect of zakat and make it a deep-rooted effect among the various communities across the India, across the institution, and across the various recipients. At the moment, in individual giving and taking, there are lots of leakages and other wastages and duplications. So hopefully, we will be able to overcome all the disadvantages of current system of collection and dissemination of zakat. Yeah? And Alhamdulillah, it was a central part of the Islamic administration during time of the Prophet ﷺ and all the Khulafa Rashidun. And only with the advent of colonialism that this institution was destroyed. But now we are reclaiming this institution of collective zakat. Many other people have tried it before, but they could not have done it on a larger scale as AMP is doing. And inshallah, my wholehearted support is there, and my encouragement and support is there to make it a core national institution for the empowerment, economic development, and of course becoming the givers of the humanity. So the zakat's effect, and along with zakat goes the sadaqat and other lillah thing also, that it will become like a speaking point and a nice rallying point for the Islamic and Muslim communities, good quality of as a generous givers and donors. Like in UK, Alhamdulillah, Muslim community has acquired so I can share with you that even the Oxfam and many other non-Muslim and secular charities are jumping on the bandwagon of collecting the zakat, and they have set up the Sharia scholar boards and other things to be able to tap into the zakat givers and even manage it on although there are some reservation with it. But what it shows that the tapping zakat resources is a global phenomena, and whoever can organize it, manage it in a most efficient way, they will be able to nurture and develop the community and beyond community and inter-community relationship with this third pillar of Islam, which is really one of the fundamental pillars which connects the Islamic ethos with the humanity and
the rest of the community. Apart from the Shahada and Salah, which is to set our belief and our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, zakat sets two-dimensional or three-dimensional relationship. By devotionally giving to the humanity, we are connecting to Allah subhanahu wa ta'ala, purifying ourselves while benefiting the rest of the community and the humanity. I think with this brief, I would like to stop here, and I thought I have summarized the whole philosophy, purpose, functions, and immense effect of zakat, especially doing it collectively as a one platform under one canopy of zakat. So I will, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. I would like to stop here unless if there is anything else. बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब. Thank you so much for your enlightening speech, and this was really useful. At least whatever you said, very few places we hear talk like this, which makes in present scenario a lot of sense. So I'll go to Amir Bhai quickly, and Amir Bhai, if you'd like to talk about MP background history, where we started, how and what it takes for us to reach to the level we are today. Then inshallah, Mufti Sahab, please feel free to drop off because I know there is after time in 10 minutes. After 10 minutes, I may drop. Yeah, no problem. So, बहुत बहुत शुक्रिया Mufti Sahab. Sansa bhai, can I have a question to Brother Qadir? Mufti Sahab? Answer, Hasan Bhai, maybe we can have at the end of the session, if you don't mind. Okay. Mufti Yeah, Sahab will sure. join us after iftar, if possible. Mufti Sahab will run this meeting for another 1 hour. And Oh, yeah, if, yes. So like, I'll take leave for half an hour after iftar and prayer, and then I'll rejoin. Perfect. Thank you so much. Yeah. Amir Bhai. So, yeah, Jazakallah Shansha bhai, thank you so much, Mufti Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It was wonderful to hear Mufti Saab. Mufti Saab ने बहुत क्रक्स में जो बेसिक फिलॉसफी है ज़कात की वो आप लोगों के सामने बयान कर दी. मैं ज़कात पर ज़्यादा बात करने के बजाय जैसे शहंशाह भाई ने अभी रिक्वेस्ट की, I would like to speak more about AMP, how it started, how we have reached to this level, alhamdulillah. तो I will start. मैंने ये स्टोरी आज तक कभी किसी को बोली नहीं. आज पहली बार जो है मैं आज ये यूएस कॉल पे एक स्टोरी बोलने जा रहा हूँ कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इन 2002. तो जब मैं ग्रेजुएशन पूरा करके आया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी मैंने. व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे, आई वाज नॉट इन बॉम्बे, आई वाज स्टडीइंग इन पुणे. सो आई केम बैक टू बॉम्बे. उस टाइम अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत हैवी रिसेशन जो था इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा था. जॉब्स वगैरह नहीं थे लोगों के पास. सो जॉब्स के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी. तो somebody called me, मैं बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में रहता हूँ, और somebody told me कि आप अंधेरी आ जाइए, we will see जॉब के लिए क्या कर सकते हैं. मैंने उनसे एड्रेस पूछा तो बोला आप अंधेरी स्टेशन पहुंच के मुझे फोन करना और मैं बताऊंगा एड्रेस आपको. तो मैं सुबह सुबह उठकर मैं अंधेरी स्टेशन पहुंचा, वहां से फोन लगाया मैंने. तो जब मैंने सामने वाले को फोन लगाया जिसने मुझे बुलाया था, और मैंने तो उसने फोन नहीं उठाया, उसके किसी साथी ने वहां पर फोन उठाया और मैंने पूछा कि फला भाई हैं क्या. तो वहां से सामने से मैंने सुना ये आवाज, वो ये बोल रहा था जिसने मुझे बुलाया था कि आप बोल दो नहीं है. तो मैं अंधेरी स्टेशन पर वो जिसने फोन उठाया उसने कहा कि नहीं भाई वो फला भाई तो है नहीं और आप बाद में फोन करिएगा. तो मैं बहुत मायूस हुआ. दुख की तो बात थी कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट लड़का अगर कहीं से बाहर निकले जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, फैमिली का पहला ग्रेजुएट है वो, अगर, और जॉब्स की मार्केट इंटरनेशनली इतनी बुरी चल रही है, और ऐसे में अगर कोई बुलाकर इतनी दूर, बॉम्बे से अंधेरी काफी दूर, 1 घंटा लगता है पहुंचने में, वहां पहुंचकर फोन करे और ये बोले कि नहीं वो नहीं है, तो वो बहुत तकलीफदेह है. मतलब ये सूरत हाल मैंने उसी दिन तय किया कि ये तकलीफ हम लोगों को हो रही है, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अपनी जात से कुछ ऐसा करें कि ये तकलीफ दूसरे बच्चों को ना हो, दूसरों को ना हो, और हम लोग दूसरों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को आती है मुस्लिम्स में स्पेशली, क्योंकि जितने सारे लोग हमारी तरह पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं. पहली बार वो पहले लोग होते हैं अपनी फैमिली की जो बाहर आते हैं, जिनको फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, करियर गाइडेंस नहीं है, मोटिवेशनल बात करने वाला कोई नहीं है, जॉब के रेफरेंसेस देने वाला कोई नहीं है.
दुनिया की हर प्रॉब्लम है, अल्लाह ने मौका एक इनायत कर दिया कि हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन जो एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं मैसर नहीं होती। हमने तय किया था, आई थॉट कि वी शुड डू समथिंग, बहुत सारी कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में एएमपी की बुनियाद डाली हम लोगों ने, इन्हीं सारे मकान। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको तैयार करती हैं कि आप कुछ बड़ा काम करें। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से हम लोगों ने एएमपी की एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की 2007 में। वी स्टार्टेड विथ ऑर्कुट, आप सब लोगों को मालूम होगा, एक सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की तरह होती थी। वी स्टार्टेड अ कम्युनिटी ऑन ऑर्कुट 2007 दिसंबर को, स्पेशली अगर प्रिसाइजली मैं बोलूं तो इट वाज December 6, 2007 when we created that community and started inviting people, young professionals on social media to come forward and join this initiative, to join this mission, कि कहीं ना कहीं टुगेदर हम सब लोगों को मिलकर we have to work for the community, we have to work for the educational development of the community, we have to work for economic development of the Muslim community, we have to work for the political development of the Muslim community, we have to work for the सोशो कल्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इस मकसद के तहत हमने लोगों को जमा करना शुरू किया। जब हम लोग थोड़े दिन बाद, दिसंबर की बात है, अप्रैल में हम लोगों ने जो है पहली मीटिंग जो है एएमपी की कॉल की, कि जो लोग वहाँ कनेक्ट हुए थे, हमने कोशिश की कि कुछ लोगों को जमा किया जाए और मिलकर बात की जाए। अब तक 3-4 महीने तक कम्प्लीटली ऑनलाइन ही चला, सब कुछ लोगों को इकट्ठा करना, जमा करना। जब पहली बार हमने मीटिंग कॉल की तो आई वॉज नॉट नोइंग एनीवन इन बॉम्बे। बॉम्बे में मीटिंग कहाँ करना, कैसे बुलाना, आई हैड नो आइडिया। तो मैंने अपने एक दोस्त को रिक्वेस्ट किया, बॉम्बे में एक इलाका है बाइकल्ला में, आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड कि एक जगह का इंतजाम करा दीजिए। तो बाइकल्ला स्टेशन के नजदीक एक बिल्डिंग की टेरेस पर हम लोगों ने पहली बार मीटिंग की। इट वाज अप्रैल 2008, फर्स्ट टाइम वहाँ मीटिंग की। उसके बाद सेकेंड टाइम हमारे कॉल में इस वक्त सईद भाई भी मौजूद हैं, हमारे बहुत अजीज दोस्त है, बड़े भाई हैं हमारे। इनसे मुलाकात हुई उसी दौरान में। दे रन अ मैसिव पार्क इन नागपाड़ा जंक्शन, बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में जो एक बहुत बड़ा हब है नागपाड़ा जंक्शन, वहां पर एक पार्क है। उस पार्क को रन करने वाले सईद भाई हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि हम लोगों को मीटिंग करने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए ये जगह अगर आप दे सकते हो तो दीजिए प्लीज। तो ही इमीडिएटली अग्रीड, और दूसरी मीटिंग से फिर हम लोगों ने वहां से हमारा काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पार्क है जो उस वक्त तो मतलब इतनी बुरी कंडीशन में था कि छोटे से 2 झोपड़े थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्क भी बहुत तरक्की कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखिएगा नेट पर उसके बारे में, तो इवन यू विल फाइंड अबाउट दैट पार्क एज वेल। हम लोगों ने वहां से शुरुआत की, और आज आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद वो जो छोटी सी कोशिश हम लोगों ने शुरू की थी, आप देखेंगे ना सिर्फ इंडिया के 100 से ज्यादा शहरों में हमारी ब्रांचेस कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के 25 से ज्यादा स्टेट्स में हमारी स्टेट टीम्स आर वर्किंग। नॉट ओनली इन इंडिया, आप सब लोग खुद विटनेस हैं, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो वी आर अ क्रेडिबल नेम नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 15 कंट्रीज वी हैव गॉट आवर टीम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से यूएस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूके इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी और आगे आती रहेंगी। हम लोगों ने जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू की तो ये तय किया था कि वी विल वर्क ओनली ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया, छोटी छोटी एक्टिविटीज से काम शुरू किया, मतलब कुछ ऐसे नहीं किया, बहुत सुपरफिशियल करने के लिए नहीं गए हम लोग, क्योंकि हम सब लोग जो है बहुत यंग प्रोफेशनल्स थे। जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं, शहनशाह भाई और हमारे बहुत सारे साथी हैं, हम सब ने तय किया कि बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए लोगों को कनेक्ट करना है, एंगेज करना है, और एक नया जो है, एक नया सिस्टम लोगों के सामने, एक नया प्रोसेस, एक नया काम करने का तरीका कहीं ना कहीं सामने रखना है, ताकि ना सिर्फ हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस सिलसिले में काम करें, बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है कहीं ना कहीं उससे सीख ले और वो एक ट्रेंड बने और लोग उस तरह काम करने लगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने शुरुआत की कि हमने वी स्टार्टेड एनकरेजिंग आवर मेंबर्स, जो लोग हमसे जुड़ते थे, कि वी ऑल मस्ट गो टू स्कूल्स, जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स हैं, या बहुत बैकवर्ड स्कूल्स हैं, वी शुड गो देयर एंड टीच दी स्टूडेंट किड्स, टीच द चिल्ड्रन, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, मोटिवेशनल लेक्चर्स हो, या कोई सब्जेक्ट मैटर हो। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो एक नया ट्रेंड शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे। उसी तरह से बहुत क्विकली मैं बताना चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाके, बल्कि ये कोशिश करूंगा कि क्विकली क्या बिगर माइलस्टोन्स रहे एएमपी के, चूंकि तो वो माइलस्टोन्स पर बात करूंगा। एजुकेशन के बहुत सारे, करियर गाइडेंस के, मोटिवेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए लोगों के साथ मिलकर, और साइमल्टेनियसली काम को आउटसाइड बॉम्बे भी स्प्रेड होने लगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हम लोग सारे ही लोग प्रोफेशनल्स थे
तो जॉब्स का बड़ा मसला आता था, जो एक बड़ा रीजन था। तो वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल विद प्लेसमेंट्स, कि कहीं ना कहीं लोगों को जॉब कैसे दिलाई जाए, रेफरेंसेस से कैसे कनेक्ट कराया जाए, अपॉर्चुनिटीज से कैसे कनेक्ट कराया जाए। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हम लोगों ने लेने शुरू किए, खुद से ही लेना शुरू किया लोगों को, ज्यादा जो जो थोड़ा सा ट्रेन कर सकता है, वी आस्क देम कि स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग सो दैट वी कैन हेल्प पीपल। 2012 की बात है, 2012 में हम लोगों ने पहली बार जो है जॉब फेयर किया। अगेन वी डिड दैट जॉब फेयर इन द सेम पार्क जिसको मैं रेफर कर रहा था, नागपाड़ा जंक्शन पर एक पार्क है। आप यकीन मानिएगा, हम लोगों ने जब पहली बार जॉब फेयर करने की कोशिश की, कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कॉर्पोरेट से कनेक्शन नहीं था। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, 10 लोगों ने कंफर्म किया, 10 कंपनीज ने कि दे विल कम, और उसमें से 8 कंपनीज उस दिन आई वहां पर जॉब फेयर में। और जब हम लोग सुबह वो पार्क में जब हम पहुंचे, उसके पहले कम से कम 1000 लोग ऑलरेडी खड़े थे वहां पर, बच्चे, जॉब सीकर्स। और थोड़ा वक्त गुजरते 10-11 बजते बजते पूरा नागपाड़ा जंक्शन वाज ब्लॉक्ड। वी हैड टू कॉल पुलिस टू अरेंज दी बंदोबस्त ओवर देयर। और हम लोगों को समझ कम 5000 से ज्यादा बच्चे आए वहां पर उस पार्क में, जो कुछ खुद की पार्क की कैपेसिटी नहीं थी। हम लोगों ने उस दिन तय किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर और फोकस करना चाहिए। वो 2012 था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन वगैरह बंद होने इसके मतलब, यानी ये 2020 को छोड़ दीजिए, 2019 तक हम लोगों ने 42 जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 25,000 लोगों को प्लेस किया। जब पहली बार हमने जॉब फेयर किया था, 8 कंपनीज आई थी। आज हम लोग जॉब फेयर करते हैं तो वी कैन इजीली गेट मोर देन 100 कंपनीज एनीवेयर इन इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। Not only in Bombay, we did our job fairs in different parts of the country, not only for the Muslims, we did it for everyone। जितने मुस्लिम्स आते हैं उतने ही नॉन मुस्लिम्स आते हैं, ना सिर्फ मुस्लिम पार्टनर्स के साथ, ना सिर्फ मुस्लिम प्रीमाइसेस में, बल्कि हम लोगों ने ये नॉन मुस्लिम पार्टनर्स के साथ भी किया, नॉन मुस्लिम प्रीमाइसेस में किया। हमारे जॉब फेयर कभी चर्च में हो रहे हैं, कभी टेम्पल ग्राउंड में हो रहे हैं। हत्ता कि ये कि बॉम्बे औरंगाबाद पुलिस है, थाने पुलिस है, ये पुलिस के डिपार्टमेंट दे केम टू अस, दे आस्क्ड अस कि आप हमारे बच्चों के लिए जॉब फेयर करिए। हम लोगों ने एक जॉब फेयर थाने में किया, थाने पुलिस के लिए। थाने इज इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। हमने वहां जॉब फेयर किया। जब किया तो 6000 जो है बच्चे आए, जिसमें से 2200 बच्चों को उसी दिन जॉब लगा। आप यकीन मानिए कि जॉब लेने के लिए जो लोग आ रहे थे वो सारे पुलिस वाले थे, पुलिस के रिश्तेदार थे, पुलिस की फैमिली के लोग थे। बंदोबस्त में पूरी पुलिस खड़ी थी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का वहां मौजूद था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसके अलावा जॉब देने वाले वहां पर मुस्लिम थे। सारे ही लोग जो वहां पर मेहनत कर रहे थे, वो स्टाफ में लड़कियां थी, वो दाढ़ी टोपी वाले नौजवान थे, और ये लोग जॉब दे रहे थे और नॉन मुस्लिम जॉब ले रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि ऐसी कामयाबी विद इन मुस्लिम बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्से में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ हम लोगों के पैशन और जोश और जज्बे की वजह से मुमकिन हो पाया, कि हमने तय किया था कि एकदम सर बात पक्की कर ली थी कि नहीं, ये करना है, और हम ये करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इस तरीके के बहुत सारे अचीवमेंट्स आते रहे माशाल्लाह। एक सिर्फ एक माइलस्टोन के तौर पे, या एक आप लोगों को एक असल समझ में आया उसकी, इसलिए एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से जो भी प्रोजेक्ट्स हमने किए, चाहे एजुकेशन के हो, एम्प्लॉयमेंट के हो, ट्रेनिंग्स के हो, स्किल ट्रेनिंग का काम हम लोगों ने शुरू किया। स्किल ट्रेनिंग इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मिशन है, ना सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट का, बल्कि अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा है, हर कम्युनिटी का, हर ग्रुप का एजेंडा होना चाहिए। कहीं ना कहीं वी वर लैकिंग इन दैट। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग पार्टनर से बातचीत करनी शुरू की। एक मिसाल के तौर पे मैं आप बताऊं, कम से कम इस वक्त जो है मोर देन 50 टॉप ब्रांड्स आर कनेक्टेड विद एएमपी। टाटा के साथ हमारा स्किल ट्रेनिंग का टाई अप है, आईसीआईसीआई के साथ टाई अप है, आईएलएनएफएस के साथ टाई अप है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमारा टाई अप है, एंड वी सेंड आवर स्टूडेंट्स टू देयर ट्रेनिंग सेंटर्स एंड वी गेट देम ट्रेन्ड एंड गेट देम प्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है, फन फर्स्ट नाम है उसका, वो दे ट्रेन फॉर वर्लपूल। उसमें हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं, और जब बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो एसी टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेटर, ये जो होम अप्लायंसेस होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग के लिए वी सेंड दीज स्टूडेंट्स टू दिस ट्रेनिंग पार्टनर। और पहले हमने बॉम्बे में शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे, बड़ौदा, इवन लखनऊ एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, आल्सो बैंगलोर, वी सेंड स्टूडेंट्स टू गेट दिस ट्रेनिंग। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ज्यादा बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग पे कैसे भेजा जा सके, ताकि इनको जो है एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ताकि इनको कहीं ना कहीं रोजी से जोड़ा जा सके, ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल बने। एएमपी का जो पूरा काम है, कहीं ना कहीं उसकी कोशिश ये है
कि लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए, लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए जाएं। यानी एक आदमी जो आज मदद लेने के लिए आ रहा है, उसको मदद देने वाले की हैसियत में कम पहुंचाया जाए। कम से कम इतना किया जाए कि उसको मदद लेने की जरूरत ना पड़े। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो मदद देने लायक भी होगा। ऐसी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है कि जहां हमने लोगों की मदद की थी और आज दे हैव बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट पिलर्स ऑफ एएमपी, यानी लीडरशिप की टीम में है ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बीच में 2013 में हम लोगों ने एएमपी ज़कात फंड की शुरुआत की। एएमपी ज़कात फंड की जब हमने शुरुआत की तो मिड रमजान, मेरे ख्याल से 14 या 15 रमजान का दिन होगा वो 2013 में, जब हम लोगों ने तय किया कि लेट अस डू समथिंग ऑन ज़कात, लेट अस अप्लाई सेम फंडामेंटल्स। हम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ज़कात पे काम करना पहले से था। लोगों की आइडियाज भी हमेशा, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने की बात करेंगे मुसलमानों के दरमियान में, तो पीपल ऑलवेज गिव यू आइडिया ऑफ ज़कात। लेकिन हम लोगों ने इनिशियल डेज में एएमपी की ये काम नहीं किया, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं भी फंड रेज करते हुए दिखाई दें, हम कहीं भी फंड मांगते हुए दिखाई दें। तो हमने 5 साल गुजारने के बाद 2007 से 13 6 साल होने के बाद हमने 2013 में इसको स्टार्ट किया पहली बार। और हमने तय किया 2-3 चीजें। नंबर 1 कि ज़कात फंड का मकसद होगा ज़कात लेने वाले को ज़कात देने वाला बनाना, यानी टुकड़ों में ज़कात बांटने की बजाय हम सब लोग मिलके इस तरह से ज़कात दें कि जिसकी ज़कात जिसको दी जा रही है उसकी लाइफ में अगेन बदलाव आए, जो मैं उसकी बात कर रहा था। तो पहली बार जब हम, और दूसरी कोशिश ये हो कि वो हमने तय किया कि सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी लाइवलीहुड शुरू हो सके, किसी को कोई लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जा सके, कोई छोटे मोटे कारोबार में लगाया जा सके, उसमें लोगों को कनेक्ट किया जाए। पहली साल हमने कोशिश की 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए जमा कर पाए और 15 लोगों की हमने मदद की, जिसमें से 10 लोगों को स्कॉलरशिप दी हम लोगों ने और 5 लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने में मदद की। आप ये नंबर्स भी चाहेंगे तो एमपी की वेबसाइट पे सारे नंबर्स इन डिटेल, एवरीथिंग, फाइनेस्ट ऑफ द फाइन डिटेल्स जो है एमपी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हमने ये कोशिश की कि इस कॉन्सेप्ट को आम किया जाए। दूसरी एक बात तय की कि हमने ये तय किया कि इस जो ज़कात जमा होगी 100% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ज़कात के एडमिनिस्ट्रेशन में लगने वाला जो खर्च है वो हम लोग अपने एडमिन अकाउंट से करेंगे, ज़कात में से नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो रहे हैं ज़कात फंड को भी रन करते हुए, 2013 से 2019 तक। जो हमने शुरुआत 2 लाख रुपयों से की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हम लोगों ने तकरीबन 90 लाख रुपए ज़कात फंड की मद में डिस्ट्रीब्यूट किए। जहाँ पहली साल हम लोगों ने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी, इस साल हम लोगों ने 255 बच्चों को हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप दी। और उसके साथ साथ 246 या 47 शायद बच्चों को, ऑर्फन्स को, उनके बेसिक एजुकेशन के लिए हमने सपोर्ट किया। और साथ ही साथ 150 लोगों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मदद की। किसी को गोट रियरिंग प्रोजेक्ट में लगाया, किसी को सब्जी तरकारी की दुकान में सेटअप किया, किसी को क्लॉथ एंड गारमेंट शॉप लगा कर दी। यानी अलग अलग तरीके से तकरीबन 150 लोगों को अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने में लोगों की मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार तकरीबन 759 लोग ऐसे बेनिफिशियरीज रहे इस प्रोजेक्ट के। तो दिस इज हाउ वी हैव इंस्टीट्यूशनलाइज द एंटायर प्रोसेस। हम लोग ये नहीं बोलते, कहीं पर क्लेम करते कि हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा ज़कात फंड है या इंडिया का सबसे बड़ा ज़कात फंड बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इंडिया का सबसे यूनिक ज़कात फंड बनाए, इंडिया का ऐसा ज़कात फंड बनाए जिससे हर ऑर्गेनाइजेशन इंस्पिरेशन ले सके, हर ग्रुप इंस्पिरेशन ले सके और वो लोग भी इसी सिम्त में काम करें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो बातें हम लोग सब जानते हैं लेकिन हमने उसको भी साइंटिफिकली प्रूव किया। पिछले साल 2019 में वी डिड अ नेशनल ज़कात सर्वे रन किया हम लोगों ने। अराउंड 4600 पीपल रिप्लाई टू दैट सर्वे। उसमें हम लोगों ने बेसिकली ये जानना चाहा कि लोग ज़कात के बारे में लोगों को कितनी नॉलेज है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। अभी लोग ज़कात कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जानना चाह रहे थे। वो क्या सोचते हैं कि ज़कात कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ये जानना चाह रहे थे। ये 3 चीजें हम पता लगाना चाह रहे थे। आपको जान के हैरत होगी कि जो उसकी फाइंडिंग्स आई, 60% 40 अराउंड 30% लोगों ने कहा कि दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट ज़कात। मोर देन 40% पीपल सेड दैट कि उनको ज़कात सही कैसे कैलकुलेट करना नहीं आता। 60% लोगों ने ये कहा उसमें कि हम लोग हर साल सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को ज़कात देते हैं। आई रिपीट, 60% लोगों ने कहा कि हम लोग हर साल सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को ज़कात देते हैं। कहीं ना कहीं जो मुफ्ती साहब बता रहे थे ये ज़कात की बेसिक फिलॉसफी के खिलाफ है।
ज़कात का मकसद था कि लोगों को एम्पावर करना, लोगों को बेगर बनाना कभी भी ज़कात का मकसद नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच नहीं होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हम ये सब अचीव नहीं कर पाए अभी तक विद इन मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इज अ वेरी बिग कम्युनिटी, 20 करोड़ मुस्लिम्स। अगर उसका एक छोटा सा सेगमेंट भी प्रॉपरली ज़कात देता है और वो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में खर्च यूज की जाए, तो मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत एक लिमिटेड टाइम में पूरी कम्युनिटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स है। मोर देन 90% ऑफ पीपल said in that survey that we must have a central zakat management system, जहां पर हम लोग डोनर्स और सीकर्स को एक साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सके। तो ये सारी फाइंडिंग्स आई। हमने तय किया कि अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन करेंगे इंशाल्लाह, और नए नए इनिशिएटिव्स को लाएंगे, ताकि जो है इनिशिएटिव्स बहुत बड़ा करना, पैन इंडिया लेवल का करना हमारा ये मकसद नहीं है। हम पूरे इंडिया की ज़कात को एक जगह जमा करना चाहते हैं, अब ऐसा कभी भी मकसद नहीं है। जो लोगों को समझ में आए, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे, उनको इकट्ठा करना और इसको एक ट्रेंड बनाना, ताकि सारे लोग इसी तरह से काम करें। आज हम लोग ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन खड़े करेंगे, इंशाल्लाह कल एक वक्त आएगा जब इन्हीं इंस्टीट्यूशन का एक फेडरेशन बनेगा, जब यही इंस्टीट्यूशन आपस में कोलैबोरेट करेंगी, जब यही इंस्टीट्यूशन आपस में मिलकर जो है बड़े इनिशिएटिव्स पर काम करेंगी। ये कहीं ना कहीं एएमपी का मकसद रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर गुजरते साल के साथ उसमें और जो है ना बढ़ोतरी आप बोल सकते हैं, या उसमें जो है ना ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देखते जा रहे हैं। चाहे फंड कलेक्शन हो, चाहे रीच आउट हो, चाहे नए इनिशिएटिव्स की बात हो, ये हम लोग करते जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी जो हम लोग ज़कात फंड रन कर रहे हैं, उसमें हम लोग 3 प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, या आप कह लें चार प्रोजेक्ट्स। एक हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, जिसकी एप्लीकेशन पैन इंडिया मंगाई जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस के साथ उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आप वो देख सकते हैं सारी चीजें वेबसाइट पर। दूसरा है, हम लोग ऑर्फन्स की बेसिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए लोगों को मदद करते हैं। और चौथा, हम लोग बहुत सिलेक्टेड वे में जो बच्चे आईआईटी और आईआईएम में जिनको फीस की जरूरत होती है, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो इससे रिलेटेड भी एक प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं। बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो इन 4 मदों में बेसिकली एएमपी ज़कात फंड का पैसा खर्च होता है, और तकरीबन तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों मदों में, और उसको खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस साल हम लोगों ने इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया कि हम लोगों ने क्राउड फंडिंग वेबसाइट जो है ना, ज़कात सेंट्रिक, ज़कात को ही मैनेज करने के लिए एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ indiazakat.com। आपने शायद मैसेजेस देखे होंगे। तो बेसिक मकसद ये है कि ज़कात सीकर को, ज़कात डोनर को कनेक्ट किया जाए और ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ाया जाए, और लोग डायरेक्टली जो है ना ज़कात सीकर को एक साथ मदद करें। कि अगर एक किसी की जरूरत 1 लाख रुपए की, और वो 1 लाख में वो अपनी लाइफ सेटल कर सकता है, तो चलिए 4 लोग मिलकर उसको मदद करें, 10 लोग मिलकर उसको मदद करें, और उसका जो है मकसद पूरा हो। कम से कम हमारी कम्युनिटी में से एक आदमी ज़कात लेने वालों की फहरिस्त से कम हो। ये कहीं ना कहीं इस पूरे इनिशिएटिव का मकसद है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों ने इस मकसद से लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि अगेन सारा ही वॉलंटरी चल रहा है। इसके अंदर काम करने वाले लोग, टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग, कहीं पे भी स्टैंडर्ड वाइज ये वर्ल्ड की किसी भी जो है ना वेबसाइट को वी कैन कॉम्पीट अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। लेकिन काम करने वाले सारे वॉलंटियर्स हैं। अभी तक कम से कम 20 लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड दे आर पुटिंग देयर डे एंड नाइट इनटू इट। दे आर और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हम लोगों ने तकरीबन 10 लाख रुपए के ऊपर जो है इसके ऊपर फंड रेज किया है। कम से कम 3-4 कॉजेज ऐसे जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए लास्ट 15 दिन में। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है मुझे लगता है कि और अच्छी तरीके से ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और ये सिर्फ इस रमजान के लिए नहीं है। अगेन हमारा मकसद सिर्फ बहुत बड़ा पैसा जमा करके बहुत बड़ा न्यूज क्रिएट करना नहीं है। मकसद हमारा ये है कि चीजों को अगेन प्रोसेस ओरिएंटेड किया जाए, चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि ये चीजें ता कयामत चले हम लोगों के लिए। मतलब हम हमारा नाम उस फहरिस्त में लिखना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, और वो साल दर साल जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह हम सबको इसका कहीं ना कहीं अजर देगा, जो सारे लोग कनेक्टेड हैं, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं हो, जो लोग भी एमपी से कनेक्टेड हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको इसका कहीं ना कहीं हिस्सा और इसका अजर हम लोगों को देता रहेगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, एक ही दिन पहले हम लोगों ने ये फीड दी पुअर, आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक कैंपेन लॉन्च किया, स्पेशल कैंपेन इन दिस करंट टाइम्स। जो लॉकडाउन जिस हिसाब से चल रहा है, जो सूरत हाल है स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, जो यहाँ पर इतनी बुरी सूरत हाल है, तो उसमें जो है ना खास तौर पे गरीबों के लिए और नादारों के लिए स्पेशली राशन का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा, मतलब इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी जरूरतें बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोगों ने अपनी
व्हाट वी कैन डू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारी बातों की बजाय ये सोचना हम लोगों के लिए हमेशा जरूरी है कि हम लोग अपना हिस्सा कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कैंपेन लॉन्च किया जिसमें हमने तय किया कि फर्स्ट फेज में 5,000 फैमिलीज को मदद करेंगे इंशाल्लाह, और पहले ही दिन तकरीबन 2 लाख रुपए इसके अंदर रेज हुए। मतलब 200 फैमिलीज का कम से कम जो है खर्च इसके अंदर लोगों ने डोनेट किया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चलता रहेगा, ना सिर्फ रमजान में, बल्कि ये कैंपेन तो हम लोगों को लगता है रमजान के बाद भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की और कोविड की क्या सिचुएशन है हम सब जानते हैं, कब खत्म होने वाला नोबडी नोज अबाउट इट। तो ये ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों को चलाने पड़ेंगे, और उसमें हम सब लोगों को, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, साथ की जरूरत है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बल्कि इन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना, कामयाब करना, लोगों को बताना, ऑर्गेनाइजेशंस को लाना, डोनर्स को लाना, बहुत सारा काम होता है। तो एफर्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल सी अगर खाली आप इसका एक लिंक आपके फेसबुक पे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह दैट विल आल्सो बी काउंटेड इन द बुक्स ऑफ अल्लाह। जिस तरह वो नारे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो जब आग में फेंका गया था, और एक चिड़िया जो एक पानी का तिनका लाकर डालती थी, तो उसने ये कहा था कि मैं अपना नाम आग को बुझाने वालों में लिखाना चाहती हूँ, ना कि आग लगाने वालों में। वो उसके एफर्ट्स कितने बड़े हैं, ज्यादा हैं अल्लाह के नजदीक, वो ज्यादा अहम नहीं है। हम लोग कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो बहुत अहम है। तो हम अपने इंडिया ज़कात प्लेटफॉर्म से कितनी फैमिलीज की मदद कर पाएंगे, कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग एफर्ट्स कितने ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अपना दिन रात इसमें लगा रहे हैं। लोग लॉकडाउन में शायद कुछ और एक्टिविटीज कर रहे होंगे, हम लोगों ने अपना पूरा वक्त जो है ना इस इन इनिशिएटिव्स पे लगा दिया है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक यूएस में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बहुत एफ्लुएंट जगह पर आप लोग हैं। अल्लाह ने आप लोगों को बहुत नवाजा है, सब लोगों को, ना सिर्फ आप लोगों को बल्कि आप लोगों की कॉन्टैक्ट्स। आप देखिए ना, एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसी तरह से चेन बनती है। कोई किसी भी दुनिया में जो है ना इनकलाब एक बार में नहीं आ जाता, वो आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप होता है। एएमपी एक दिन में नहीं बनी। आज जिस लेवल पर आप एएमपी को देख रहे हैं कि हम लोग पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इट हैज टेकन अस 10 इयर्स। तो 10 साल में अगर हम यहाँ पर पहुंचे, इसी तरह ये सारे इनिशिएटिव्स को भी हम सबको मिलकर आगे ले जाना होगा, सबकी मदद लगेगी। और इंशाल्लाह किसी वक्त कभी फिर से मौका मिला आप लोगों से बात करने का, तो आई विल टॉक ऑन द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एएमपी की एएमपी क्या सोच रही है, कैसे आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई फॉर दिस वंडरफुल स्पीच। I'll go to Saeed भाई quickly. Saeed भाई, if you can. सईद भाई, ये वही सईद भाई हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था अपनी बातचीत में, कि ये वो शुरुआती दौर के हमारे साथी हैं कि जिन्होंने हम लोगों को कम से कम वो जगह दी बैठने के लिए कि आप यहाँ से काम शुरू करिए। तो वी थॉट दैट कि वी शुड ब्रिंग हिम टुडे इन दिस कॉल। We are lucky to आमिर भाई be the थोड़ा part सा of MP. इंट्रोडक्शन दे दें सईद भाई के बैकग्राउंड का, कि जो है जी। सईद भाई क्या करते हैं। तो बेसिक बैकग्राउंड तो जी, सईद भाई का बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं। हमेशा से फर्स्ट डे ऑफ एएमपी मैं बोल सकता हूँ, तब से इनका गाइडेंस कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। विजिबली इनविजिबली हमेशा जो है ये गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे, और हर जगह एएमपी की मीटिंग्स में मैं खास तौर पे कोशिश करता हूँ कि सईद भाई वहां रहे इंशाल्लाह। थैंक यू सईद भाई, यू कैन स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एवरीबॉडी। यौमुल फुरकान मुबारक हो, यौमुल बद्र मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। अल्लाह का करम है कि माह रमजान आते ही हम अपनी जिंदगी में इस्लाम के उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइव करते हैं, आमतौर पर जिनको हम भूले भी रहते हैं या हमारे जहनों में उतना खुला नहीं रहता। ज़कात उनमें से एक है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम और पूरे दुनिया में रमजानुल मुबारक के आने पर ही ज़कात के तईं कुछ संजीदगी बढ़ती है और ये गुफ्तगुओं का चलन बढ़ता है, और उम्मत भी ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाने के लिए रमजान मुबारक में ही जो है ज़कात देती है। नॉट बैड, अच्छी चीज है। साथियों, अभी जनाब आमिर इदरी साहब को मैंने सुना एएमपी के ताल्लुक से। मैं अक्सर कहता हूं, मैं एएमपी के दोनों नेशनल कन्वेंशन में रहा और दोनों बार मैंने एक बात कही कि एएमपी खुद अपने आप में एक मेरेकल है। जनाबे वाला 12 साल पहले चंद लड़कों का जमा हो जाना मेरे नजदीक
ऐसे लड़के जो अभी यंग हैं और अभी भी एकेडमिक एक्टिविटीज छोड़कर जॉब्स पे जुड़े हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है था कि ये लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, ये कम्युनिटी, सोसाइटी, मिल्लत, इन सब के बारे में क्या इतने संजीदा हो भी सकते हैं। लेकिन जब ये लोग पहली बार उसी नागपाड़ा गार्डन का जिसका जिक्र अभी आमिर कर रहे थे, वो जमा हुए और उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, तो मैं अक्सर कहता रहा कि ये वो अल्लाह के रसूल की जो उम्मत है, जिसको इकबाल ने कहा कि खास तरतीब में कौमें बनी है हाशमी, ये अजीब तुख्म रखती है, इसके अंदर बेसिकली रहता है। अल्ट्रा मॉड दिखने वाला लड़का भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन मिल्लत के तई उसके अंदर अजीब सा जज्बा होता है। और जब एएमपी के साथी जुड़े वहां पर, उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, बहुत ज्यादा डेप्थ इस्लाम तो नहीं था, लेकिन मिल्लत के तई वो तड़प थी। उस तड़प ने 12 साल एएमपी को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। वो जो 12-15 लोग पहली बार जुड़े थे, मैं उनको आज तक देखता हूँ, उनकी संजीदगी को देखता हूँ, उनकी तड़प को देखता हूँ, और वो 12 साल उन्होंने यही काम किया। मैंने पहले दिन भी एमपी जब बनी ये बात कही थी, और मैं आज भी एमपी के तमाम साथियों से बात कहता हूँ, ये तजुर्बा जो आपने किया ये नाकाम नहीं होना चाहिए। उम्मत ने अब आपसे उम्मीदें लगा ली हैं। मैं उम्मत में वैसे बहुत सारे साउंड रीडर्स को जानता हूँ जिनकी उम्रें अब 50-60 के करीब ऊपर जा चुकी, जो पहले नर्वस थे कि नए बच्चे कम्युनिटी को, उम्मत को, मिल्लत को क्या देंगे। वो एएमपी की एक्टिविटीज को देखकर बहुत ही ज्यादा पुरसुकून हो रहे हैं, इत्मीनान ला रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि नहीं, दे आर गोइंग टू डू समथिंग, दे आर गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। तो एएमपी का ये जो तजुर्बा 12 साल पहले शुरू हुआ, जिसने खुलूस की बुनियाद पर इन तमाम नौजवानों के दिल में इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरे साथियों, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बड़े पैटर्न के बिना नहीं बन पाती। आप तमाम लोग जानते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मिली ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने सब ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उनके पीछे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी। एएमपी को ये स्पेशलाइज है एएमपी इस मामले में कि उसने चंद नौजवानों ने खुद से तब तय किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में और अब तो अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है वो बन चुकी, और लोग डिवोटेड होकर उसमें काम कर रहे हैं। ये एएमपी का बड़ा कमाल है कि कोई भी बड़ी पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन के बिना चंद यूथ खड़े होते हैं, और वो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उम्मत के दर्द में खड़े होते हैं, खुलूस लाते हैं, और एक 12 साल इस बात को साबित कर देते हैं कि उनके खुलूस को अल्लाह ने कबूल कर लिया। बहुत जगहों पर कामयाबियां उस वक्त समझ में आती हैं कि आपकी कामयाबी को अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया, वो रिजल्ट देखकर समझ में आता है। तो ये एक एएमपी का तजुर्बा बहुत जरूरी था उम्मत में, उन नौजवानों के लिए जो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन रिलीजन में बिलीव करते थे, जो बहुत ज्यादा उन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे जिसको आमतौर पे पूरी दुनिया रिलीजियस एक्टिविटीज कहती है, लेकिन कम्युनिटी एक्टिविटीज का पार्ट बनना चाहते थे। एएमपी ने ऐसे लड़कों को वो उस जज्बात को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया, और हम देखते हैं कि ये लड़के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो कभी वो धारावी की झोपड़पट्टी में, तो कभी शोलापुर की झोपड़पट्टी में, तो कहीं इंतहाई दूर दराज यूपी के गोंडा बस्ती के गांव में जा जाकर लेक्चर्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये कमाल है उनके उस स्पिरिट को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने का और उससे कम्युनिटी को रिजल्ट देने का। तो एएमपी में ये कमाल है कि उसका मेंबर अक्रॉस द इंडिया, जो मेरा रीडिंग रहती है, मैं गौर से देखता रहता हूँ कि बहुत डिवोटेड लोग हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में ये लोग नीचे जाके काम करते हैं। शायद अपने ऑफिस में चाय भी जो है वो प्यून ही लाके देता होगा, लेकिन यहाँ जाते हैं तो लेक्चर देने से पहले जो है वो खुद ही झाड़ू भी लगा लेते हैं, ब्लैक बोर्ड भी साफ करते हैं। ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट ने असल में एएमपी को पूरे हिंदुस्तान में यूथ की, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स की, कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों की जो है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के रख दिया है। एक और अच्छी बात यह है, देखिए आपकी तमाम तर कोशिशों ने मिल्लत की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपको कबूल कर ले तो समझना आपने काम कर लिया साहब। मिल्लत में स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, जमातुल उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, हमारे अहले तशी शिया हजरात की भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एएमपी इन तमाम की अब जबान पर है, और ये तमाम लोग उसको एडमिट करते हैं एएमपी के काम को। तो मिल्लत की अगर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एएमपी के काम को एडमिट करने लग जाए, अप्रिशिएट करने लग जाए, रिकॉग्नाइज करने लग जाए, तो यकीन जानिएगा कि आपने 12 साल में बहुत बड़ा काम कर लिया।
रही ज़कात के मामले में जो बात अभी आमिर भाई कह रहे थे, ज़कात के मामले में हिंदुस्तान में सच बताएं कि 50 साल तो हम बहुत परेशानियों में हमने गुजार दिए साहब। कम्युनिटी ने 35 से 40 हजार फसादात देखे। पार्लियामेंट की रिपोर्ट है सर, हमारे होम मिनिस्टर ने पुटअप की कि आजादी के बाद एक फसाद अगर जोड़ा जाए तो इस तरह के हिंदुस्तान में 35 से 40 हजार फसादात हुए। कम्युनिटी खड़े होने में खड़े होती थी और कमर तोड़ दी जाती थी। तो कम्युनिटी ने बड़ी मुश्किल से अपना दीन बचाया, अपनी प्रॉपर्टीज बचाई, अपने मदारिस बचाए, मसाजिदें बचाई, दरगाह बचाए, और ये 30-40 साल लगा। लेकिन 30-40 साल के बाद जो है वो एजुकेशन की तरफ सिंसियरिटी आई और कम्युनिटी ने जो ना चेंज की, एक मेंटालिटी क्रिएट की। स्पेशली बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कम्युनिटी में एक बड़ा चेंज आया है और कम्युनिटी अब जो है फैक्ट्स एंड फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स, ये मामलात के समझने वाली नई यूथ लीडरशिप आई है जो अभी 40s में पहुंची है, जिसने ये चेंज को जो है ना लाना शुरू किया, जिसमें आज एएमपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वरना ये मुश्किल था भाई। आप एक बताएं कि भाई ज़कात किधर दी जाती है, मेरे बाप दादा किधर देते थे, आपके बाप दादा किधर देते, तो वी आर वेरी सिंपल सिस्टम। हम एक मदरसे वाले चीचा आते थे, बुजुर्ग आते थे, मौलाना आते थे, उनको उनके मदरसे की हमने रसीद काट दी, वो ज़कात ले गए, हमारा काम खत्म हुआ। ये ओरिजिनली चला है और मेरे ख्याल से वो उस वक्त की नीड भी थी, हमारे मदारिसों को बचाना, उन मदारिसों में आने वाले बेपनाह गरीब बच्चों की तालीमी किफालत करना, खाने की किफालत करना, ये सब भी एक नीड थी जो ज़कात के उस मनसब को पूरा करती थी। मैं और आमिर ने शायद कभी ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश ना की हो। हम लोग बहुत सारे मदारिस में गए और हमने तमाम मदारिस के बड़े बड़े उलमा से ये बात कही कि आपका समझो बजट 2 करोड़ रुपया सालाना है, आप 2 करोड़ मांग के लाते हैं और खर्च कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? आपके यहाँ कोई रिकरिंग स्कीम नहीं है। अगर किसी दिन ये 2 करोड़ का कोई हिस्सा कम हो जाएगा तो आप मदरसे नहीं चला पाएंगे। आपके घर बजट में कम हो जाएगा तो बसातिज़ा को पगार नहीं दे पाएंगे, तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे, बच्चों की रोजी रोटी के मसाइल खड़े हो जाएंगे। लेकिन मदरसे वाले अभी भी ये बात में रिलक्टेंट है। आमिर खुद गवाह इस बात के कि हम लोग कई मदरसों में गए जहां हमने उनको अलग अलग प्लान्स दिए कि अगर आप ऐसा करें तो एक रिकरिंग इनकम मदरसे की क्रिएट कर लें और कुछ ये ज़कात फिर डाइवर्ट करने में आसानी होगी। एएमपी जो चाहती है उसमें ये कि ज़कात का एक हिस्सा तो बड़ा निकल ही रहा है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर अब हम लोग जो है उसको डाइवर्ट करें उन पैसे को, ताकि उन पैसों के जरिए एक नई तब्दीली सोसाइटी और कम्युनिटी में खड़ी की जा सके। और जो नीड भी है और जो एएमपी ही कर सकती है। अभी कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी में इतनी स्टैंडिंग नहीं रखती कि वो कोई नई चीज मार्केट में फ्लोट करे। मैं मार्केट कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, वो फ्लोट करे और कोई कबूल कर ले। लेकिन एएमपी ने 12 साल में ये बात साबित कर दी अपनी स्टैंडिंग के जरिए कि अगर मार्केट में जाती है, ज़कात की जो पूरी वो है सिस्टम में, उसमें किसी शेयर को लेने के लिए और उस शेयर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का प्लान लोगों के सामने पेश करती है, तो कम्युनिटी अब आगे आकर एएमपी को एक्सेप्ट करने और उसको ज़कात का एक पर्टिकुलर शेयर देने के लिए तैयार हो रही है। और ये पिछले हमारे 3-4 साल के एएमपी के रिकॉर्ड्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है साहब मेरे। आप अगर देहातों में चले जाएं तो अभी भी हमारे मदारिस और हमारे जो गरीब लोग जो गांव खेड़ों में रहते हैं, लिटरली दे डोंट स्टिल हैव अ वन टाइम फूड। इतना बड़ा क्राइसिस अभी भी खड़ा है। तो हम जो चेंज लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रखकर कहीं कहीं लोगों को अब ये समझाना जरूरी है कि मोनोटोनस सिस्टम ऑफ ज़कात देने के बजाय आप नए चेंज के सिस्टम में ज़कात दीजिए। और ये नए सिस्टम ऑफ ज़कात में अगर आप अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी को पढ़ें तो अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी की किताबें अलग अलग जमाने में मौजूद हैं। वो बताते हैं कि अगर आपने अभी ये चेंज नहीं लाया, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्कॉलर्स क्रिएट नहीं किए, आपने दीगर एजुकेशनल शोबों में नीचे से ऊपर लाने के लिए बच्चों को, आप उसके पास तो पैसा नहीं है, अगर आपने वो ज़कात के पैसे देकर समाज में या कम्युनिटी में वो तरह के लीडर्स नहीं लाए जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, साइंटिफिकली उसमें फील्ड में लीड करें कम्युनिटी को, तब तक बड़ा चेंज हम नहीं ला पाएंगे। और ये बड़ा चेंज लाने के लिए एएमपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और हम लोग पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं, अभी एएमपी के जिम्मे ये काम जरूर है कि जो उलमाए कराम है उनको भी जो है मदारिस में जो इंटेलेक्चुअल्स उलमा मौजूद हैं उसमें भी हम लोग जाकर उनकी ज़कात को भी कोई परसेंटेज
एजुकेशनल एक्टिविटीज में जो उनके यहाँ के उलमा पे वो खर्च करें, ऐसा किया जा सकता है। जो मोनोटोनस ज़कात सिस्टम है उससे जो हम लोग मुख्तलिफ हो जाएं थोड़ा सा, और लोग कबूल कर रहे हैं, नया लड़का कबूल कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का कबूल कर रहा है, हम सब कबूल कर रहे हैं। और ये जो बातें आप अभी करेंगे, या इससे पहले मुफ्ती बरकतुल्लाह जो कह चुके हैं, आप यकीन जानिए कि एजुकेटेड यूथ चेंज चाहता है इस सिस्टम में भी, और ये सिस्टम जो है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर हम तमाम लोग जो है इसको प्रोपोगेट करें। थोड़ा सा क्या है, वी डोंट लुक रिलीजियस ना, तो हम लोग है ना ज़कात की बात करने में थोड़ा सा डरते हैं, या ज़कात मांगने में डरते हैं। कुछ लोग समझते हैं अल्ट्रा मॉडर्न यूथ लगता है, क्लीन शेव है, कोट पहना हुआ, ये ज़कात का क्या करेगा, क्या इसको मसारिफ ज़कात भी मालूम है? तो ऐसा नहीं है, हम लोग को आगे आना पड़ेगा। बीइंग ए एमपी मेंबर थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ेगी। ज़कात पे जब बात हो, वी शुड बी अ लिटिल बिट एक्सपर्ट ऑन दैट। फिर आप देखिए, पीपल विल पोर मनी इन योर प्रोग्राम्स, और इंशाल्लाह ताला एएमपी जो है एक बड़े चेंज का जरिया बनेगी। आई होप हम सब जो लोग भी ये जूम की इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वो एएमपी के इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रोपोगेट करने में अपना हिस्सा अदा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। आमीन। बहुत शुक्रिया सईद आमीन। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वंडरफुल स्पीच। So Amir bhai, we are जी, done with all the जज़ाकल्लाह। speeches. या I'll go to Saib bhai. Saib bhai, do you like to talk for a moment and share आई your? एम देयर भाई, बम्बई वाले जागते हैं सर रात को। जी। आमिर भाई तो मेरे ख्याल से शहरी के बाद ही सो रहे हैं आजकल जो। यस यस। तो पिछले 15 दिन में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, 1.5 महीने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि एमपी का वी हैव डन 3 or 4 times व्हाट वी हैव बीन डूइंग राइट इस लॉक। आमिर भाई आप राइट बताएं कि जी, हाँ सही बोर्ड बात है, की मीटिंग हो ज्यादा रही है, काम हो गया। हाँ बोर्ड की कभी डेली मीटिंग नहीं होती थी। नाउ वी आर हैविंग डेली 9:30 और 10 o'clock इन इंडिया टाइम मीटिंग फॉर एन आवर। तो मल्टीप्लाई हो गया काम जो है। So अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। I go to Saib Bhai. Saib Bhai is one of our very senior member in AMP US, and he has been associated with AMP from the beginning when we started here. But we started actual activities 2 years back, where we started talking about registration and all. And Saib Bhai has played a very great role in getting AMP USA registered, as well as we got 501c3 as well. So any donation which comes to AMP US will be 100% tax exempted. So I'll invite Saib Bhai to talk about his overall experience with AMP and how he thinks we should all support any initiative of AMP. Saib Bhai. Shukriya and Assalamu alaikum everyone, and mashallah, I am really impressed with the short talks from पहले मुफ्ती साहब ने जो बताया ज़कात के बारे में, और आमिर भाई ने जो बातें बताई बैकग्राउंड, और ख़ास तौर से सबसे टचिंग चीज़ जो उन्होंने मतलब जो है बताई कि भाई how he felt that this is so important, and talking about his own experience कि किस तरह से जो है वो अंधेरी पहुंचे, और वहां पर जो है जिन साहब ने बुलाया था उन्होंने मतलब जो है ये कहा कि वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, और बाय द वे अंधेरी में एक मिल्लत नगर है जहाँ पर जी मतलब हमारे ससुराल है मतलब, जी और अक्सर हमारा जाना होता है वहां पर। भाई किसके यहाँ ससुराल है? तो बहरहाल, और भाई खल्ला से जो है बहुत पुराना नाता है। हमारे नाना जो है 1936 में बम्बई गए थे, और उसके बाद में जब वो ट्राम चला करती थी ये, तो भाई खल्ला के जी सामने करीब में ही मदनपुरा का एक जी इलाका जी है, हाँ और नागपाड़ा से मैं बहुत वाकिफ हूँ। जी और वैसे लोग बहुत प्राउड नहीं फील करते। वहाँ पर जो है एक कॉलेज है, और मदरसा कॉलेज हम लोगों का जो है महाराष्ट्र कॉलेज जी जिसमें शायद आप लोग कुछ जानते होंगे। जी मैंने वहाँ जी पर जी 11th और 12th वहाँ से पढ़ा, और उसके बाद में फिर माशाल्लाह। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया। तो और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जो हैं इस मुकाम तक पहुँचे,
और जो अभी सईद भाई ने बताया कि किसी मतलब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का या बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी यहाँ तक आप लोग आए और इतने लोगों को, यंग मुस्लिम्स प्रोफेशनल्स को आप लोगों ने मतलब हेल्प किया जॉब में, और उसके अलावा जो सारी एक्टिविटी चल रही हैं माशाल्लाह से। और ख़ास तौर से ज़कात का एक हमेशा यहाँ पर यूएस में अक्सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़कात लेती हैं और ओवरहेड होते हैं उनके, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसे देखी हैं। लेकिन जब मुझे पहली बार शहंशाह ने बताया कि एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड वे में इसका प्रोसेस होता है एएमपी में, और एक डॉक्यूमेंट है, उन्होंने बल्कि वो डॉक्यूमेंट मुझे भेजा कि दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन एंड विद द इनपुट ऑफ द उलमा इकराम और मुफ्ती लोगों से, टू इंश्योर दैट इट इज डन इन ए राइट वे। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि इस तरह का क्योंकि अक्सर लोग जो ज़कात लेते हैं, अभी सईद भाई ने बताया कि भाई और आपने भी, आमिर भाई ने भी बताया कि भाई लोग जो हैं बस एक ही ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ ऐसे लोगों को सालों साल देते रहते हैं, और वो सिर्फ जो है हमेशा ज़कात लेते रहते हैं। और मुझे भी पता है कुछ 25, 30, 40 सालों से भी कोई फैमिलीज हैं उनका सिर्फ ये पेशा है कि ज़कात लेने का। लेकिन आई थिंक ये बात, एक चीज मुझे बहुत ही, आई वाज इम्प्रेस्ड कि जो एम्पावरमेंट की है, कि वी नीड टू टेक पीपल फ्रॉम लाइक पॉवर्टी टू एनेबल देम टू दैट स्टेज कि उनको ज़कात की जरूरत ना पड़े और वो खुद ज़कात दें। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब शुरुआत में हमने ये देखा कि इतना सब काम और इतना बेहतरीन काम चल रहा है, एंड विद द ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली जो कोर ग्रुप है, वो रात दिन काम करते हैं, एंड आई कैन रियली सी हियर कि माशाल्लाह से जो है बहुत इसमें जो है मोटिवेशन है और एंथुजियाज्म है इस टीम में। और मैं भी उस तरह पे, उस लेवल पे मैं सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरी कोशिश है कि जिस तरह से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। और हमारी टीम यहाँ पे माशाल्लाह जो शहंशाह ने जो है वो रखी है, हमारे इसरार भाई हैं और भी बहुत लोग हैं, इस्माउल भाई हैं और आबिद भाई हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं सबका नाम मैं नहीं यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन पीपल आर वेरी डेडिकेटेड एंड इंशाल्लाह इसमें सपोर्ट करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आई नो कि अभी फंड रेजिंग शुरू होगी, लेकिन एक एनोनिमस मतलब जो है डोनर है, उन्होंने कहा है कि आज जो फंड रेजिंग होगी, जो भी हाईएस्ट डोनर होगा वो उसको मैच करेंगे। और इसी के साथ मैं सुभान अपने अल्लाह। इसको खत्म करता हूँ। शहंशाह, बैक टू यू। Yes, put a big challenge there. MashaAllah. MashaAllah. माशाल्लाह। Yeah, Shoaib bhai. So I think that was great. I'd invite इसरार भाई जो हमारे एमपी यूएसए के सेक्रेटरी भी हैं, और सैब भाई अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेजरर हैं एमपी यूएसए के। So apart from getting all the good work like certification, documentation done, he is also helping us in managing the finance. अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, but maybe after this meeting we'll have something in our account. So Israr bhai, do you like to add something, and then inshallah we can do the fundraising where we can invite people who can either in chat they can say what amount they want to donate, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग डोनेट करें. I mean there is no compulsion, there is no nothing like you have come then you have to donate. You might have already donated to MP. Passive donations already हमारे पास आ रहे हैं. Alhamdulillah, अब तक $5,600 we have already raised without even much promotion. So just one message goes, and we are able to. I mean, members are very sincere, and they give whatever they are used to give. So we are good with it. But this especially meeting we called so that we can have an organized effort in raising some fund collectively. So a small goal we set in our last meeting when we had
board and then the entire team in the monthly meeting, we said, okay, we'll try to raise $25,000 in this meeting. And since this is like first experiment for all of us, we don't know whether we'll be able to do, but let's give a try. And as Saib Bhai has already said, anybody who is donating highest will be matched with anonymous donor what Saib Bhai is given. So that is a great challenge. So Israr Bhai, if you can like officially start the fundraising, it would be great. And Israr Bhai हमारे fundraising team के जो है project head भी हैं, project lead भी हैं. इनके अंडर में 5-7 लोगों की टीम है जो कि काम कर रही थी इस पूरे project पे. And Alhamdulillah, they have been contacting people, coordinating with people. So a lot of effort during Ramzan time, and at the same time that you have to work during the office hours and do this job. Israr Bhai, I would invite you to talk a little bit and then officially we can start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. बड़ी खुशी की बात है कि सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे और मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा जो है लेआउट दिया फाउंडेशन के. ये जो है एक बहुत ही अहम चीज़ है. दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ और रिलेट करना चाहता हूँ मैं आमिर भाई की एक्सपीरियंस है. जब वो पहुँचे वहाँ एक्सपीरियंस अपना फ़ोन के कॉल के दौरान, मेरा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा. मैं जब पहली बार अलीगढ़ से दिल्ली आया था, कोई नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन दिस इज द रियलिटी. तो एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग काम कर रहे हैं. अभी सईद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो है हम लोगों को थोड़ा वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि जो है यू नो वी कैन नॉट कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ. तो अभी जो है फंड रेजिंग की इशू ये है कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स और मेंबरशिप जो भी है कलेक्ट किए हुए हैं पैसे हम लोगों ने, और इंशाल्लाह भी होता रहेगा अभी सो इंटरनली. तो अभी लेकिन इस फोरम पे जो है फंड रेजिंग का मेरे ख्याल से करने का, तो शहनशाह भाई आप लीड करें या मुफ्ती साहब लीड करें या सईद भाई लीड करें, वन ऑफ द थ्री. मैं शुरुआत में कुछ जुमले कहना चाहता हूँ. जी जी. इसरार भाई, कुरान ये जो एनोनिमस डोनर है उसने एक चैलेंज हमारे सामने डाल दिया है. पहली बात तो कुरान मजीद में मोमिनों को आपस में हराफाई करने के वर्ड होता है ना, तू आगे बढ़ जा मैं आगे बढ़ जाऊं, जो आम इंसानों में वो होती है. तो कुरान मजीद इसको नेगेट करता है, इस्लाम भी नेगेट करता है कि कोई दूसरे मोमिन से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसको छोटा करने की कोशिश करे. ये मिजाज इस्लाम नहीं देता. लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेकी के मामले में अल्लाह ताला कुरान मजीद में लफ्ज़ है मुसाबिकत, एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, ये चैलेंज डालता है मोमिनों के लिए. तो आज जो लोग भी डोनर्स यहाँ हैं अपने तरफ से जो भी ऐलान करेंगे, आज कुरान मजीद की उस चैलेंज के साथ जो है कि एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, मुसाबिकत अख्तियार करो. किस मामले में? नेकी के मामले में. इफ ही इज गिविंग $100, आई एम गोइंग टू गिव $300. तो आज जो है वो मुसाबिकत को दिखाने का दिन है. लेट्स बिगिन. आई होप सो. बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई. ये राइटली सेड, नेकी के मामले में हम लोगों को कंपटीशन होना चाहिए, बट डेफिनेटली नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस. So before anybody start, I will start with myself. So inshallah, I have already donated some money to MP USA in MP USA now account, but I will again donate at least $500. I'm going to share my and I will